एक बच्ची जो ऐसा स्कोर अटेन करती है कि जो बाकी लोगों के लिए शायद अचीवेबल हो। तो आपने सोचा कभी कि मैं इंजीनियरिंग से हट के कुछ कर लूँ? ऐसे पॉइंट आते हैं बट द बेस्ट थिंग इज टू टॉक अबाउट इट। आपको देख के तो लग रहा है पॉसिबल है, लेकिन कैसे? एग्जैक्टली स्ट्रीम चेंज करने वाला थॉट मुझे नहीं आया। उसने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की, उसने कभी गिव अप नहीं किया। You just have to ignore all of that. You need to keep working hard each and every day, and that makes you get through all of this. What you imagined back in school? Music, drama, dance, and whatnot. Everything is available. Have you got any scholarship or tuition waiver? Of course, you can get a scholarship here. कैसा लग रहा है? मैंने अपनी लाइफ में कभी इतने साउथ इंडियन से मैंने कभी बात नहीं करी है जितनी मैंने यहाँ पे पहले के 5-6 दिन में ही कर ली थी। बट इट्स गुड कि आपने उस चीज को ब्रेक करा कि नहीं, ये लक नहीं था, ये मेरी ही अपनी मेहनत थी और आपने वो चीज बार बार प्रूव करी। बिकॉज जब तक हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट दैट। लेकिन एडवांस में आपने इतना अच्छा स्कोर करा, ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस यू गॉट द अपॉर्चुनिटी इन आईआईटी मेट्रो इन द फर्स्ट राउंड। उस टाइम पे वो एक अच्छे माइंडसेट से जाना है, पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है, मैनिफेस्ट करना है कि अच्छा ही होगा जो होगा। मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. You just need to work hard in those 2 years and get here. Greetings everyone, I am Dhwani Agarwal, your host for today's podcast, and I am here with Virendra sir and Agni Vashish. And today we are interviewing Darsha Sharma, who is currently studying at IIT Mandi, and she is pursuing civil BTech in civil engineering. Where she's pursuing BTech in civil engineering, if I'm right. So now there also she has a scholarship. So now we'll ask some questions from her. So Darsha, which school teacher or specific project first made you so passionate about science? The first school project that I did was Siddhi, I think in 9th standard. It was more of a science exhibition, but we have got many different kind of subjects and topics like even history and geography on which people made different kind of projects. But my project was sustainable parking system and Aquala. So that just gave me a rise to my ignited my mind into thinking more about science. Although this thing wasn't exactly what got me into this, but the my love for mathematics, that is what which made me inspired me for taking all these subjects and going into this stream. So another question, as we all know, you are the 10th topper and also scored full marks in class 12th mathematics. So did holding the top rank in school create extra pressure or did it act as fuel for your confidence? It was both. It actually depended upon different kinds in my life of this two journey. In this two journey. So initially, it gave me a confidence, like a boost of confidence. I scored 100 marks in mathematics. I think there were only two children who did that. So that was actually something which made me feel like, yeah, I'm at the top position. But gradually, as I proceeded into this 2 year journey, I found other people, or maybe I focused too much on those people. And then I thought of myself something like as inferior to them in terms of academics. So that started even building a pressure of being at the top position, but not being able to reach that. Although, as time passed by, my parents counseled me, and some of my teachers, they were even helping me to get out of such kind of emotions. And gradually, I only focused on studying, leaving everything behind, all those distractions behind, and I got 100 in 12th mathematics also. I think you handled that pressure very well and you understood what's important for you and what comes at first. So, how did you balance daily school work as well as board exam prep and your hobbies? So it's all about time management. It was never like that I was perfect in this, but a little
management, a little planning helps you to get through all of this. I was regular in school at some point of time. At that point of time, it wasn't always like I was carrying a burden. I tried my best to complete each and everything in class itself, understand the concepts, and I've even went to my coachings and also that was a kind of a revision for me. I came to school, I did some questions, I even practice in my free time, and I was in physical education. So obviously we had sports periods. So I was into basketball. I love playing that. So that's how I even managed to get my hobbies in my school time. And other hobbies were like I like dancing. So it was like a rule for me that I gave half an hour to dancing also. And it's just all about planning. It's not like you don't have enough time, but if you are wasting it, then you surely don't. So I would like to ask you that अभी आपने बोला था कि when you were in school, so you felt inferior to some of the classmates or schoolmates that you had. So did that inferiority complex somehow made you better in what you were doing, that you have to be better in comparison to them? और when we say कि जब आपको inferior feel होता है तो कभी कभार आप सोचते हो कि आप इनसे अलग कुछ और स्ट्रीम चूज कर लो, तो क्या आपके दिमाग में भी कभी ऐसा थॉट आया था कि आप अपनी स्ट्रीम या फिर अपना जो आपका एक गोल है उसको चेंज कर लो, या आपका जो एक फ्यूचर प्लान है, जैसे आपको सिविल इंजीनियरिंग में जाना था तो आपने सोचा कभी कि मैं इंजीनियरिंग से हट के कुछ कर लूँ? क्या इसकी वजह से आपके थॉट्स पे या आपके प्लानिंग पे कुछ इफेक्ट आया था? Yes, actually, at that point of time, जब इतने सारे thoughts आ चुके थे, so my mind was literally like, there was a point of time in this 2 year journey, like I think about a month, I wasn't actually studying. I was just sitting on my table, and I was like, my book was open, but nothing was going inside. So ऐसा point आते हैं, but the best thing is to talk about it. The first thing I did was to express all these emotions to my parents. उन्होंने मुझे काफ़ी बार उन्होंने समझाया, and I was actually repeating such emotions. So even I got frustrated at times, even they got frustrated. But none of us gave up on each other. And stream change करने वाला thought मुझे नहीं आया, because मुझे हमेशा से मैथमेटिक्स पसंद थी. सो मुझे इतना लाइक बहुत क्लियर था कि जाना मुझे इंजीनियरिंग में ही है, एंड एट द एंड सिविल में ही जाना है, बिकॉज उसमें मतलब जो मेरा दिमाग में आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, दे वर ऑलरेडी इनटू माय माइंड. बट या देयर वर एट टाइम्स लाइक आई लॉस्ट कॉन्फिडेंस. सो आई थॉट इफ मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा देन आई वुड ऑब्वियसली नॉट गो इनटू सिविल, because they won't give me that particular setup and the kind of exposure that you need to get into such kind of things. So when you lose confidence, you start losing hope and you get distracted. So the best thing is to just talk to somebody you trust and just stick to your goal. Because मुझे भी अभी भी याद है, they were बस एक जो मन था मैंने तब नहीं पढ़ा था, but उसके बाद भी even my mains, it wasn't like as great, I would say. I got 95 percentile. That is good, but when I asked my peers here, they were like 98 and 99. And some people around me, they even made it like a atmosphere where they made me feel that now advance is not possible. But you just have to ignore all of that. You need to keep working hard each and every day, and that makes you get through all of this. It's truly inspiring. So I would like to ask you that how does the reality of living and studying in the IIT Mandi mountains compare to what you imagined back in school? So the atmosphere is pretty different. I mean, first of all, you see people here, they're not only after CGP and all, they talk about innovations. I see there are a lot of projects going on where people are trying to create new things, make new apps. Even one of the portal that we use currently for our studies, that is made by one of our seniors who is right now is currently in our fourth year only. So people are not only after grades and academics. We are actually sometimes we are even forced to go into co-curricular activities, because here it's about your holistic development, not just your academic development. And I think that is more important than in life than anything else. And of course, it's not only about studying. Children are into sports,
music, drama, dance, and whatnot. Everything is available. You just need to work hard in those 2 years and get here. Have you got any scholarship or tuition waiver? Yes, we have an option to avail that, but the procedure is to first get a good CGPA in your first year, and then it's called merit cum means scholarship. So if you cross that particular CGPA, then of course you can get a scholarship here. Anything you want to say about her journey? Firstly, I would like to congratulate her that she is in IIT Mandi with BTech Civil. तो पहले तो मैं दार्शा से ही पूछूंगा, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ, स्पेशली यहाँ वेदर काफ़ी अच्छा रहता है, लाइक यहाँ कोई गर्मी नहीं होती है। एंड दूसरी थिंग, जो यहाँ पर इतना डाइवर्स एटमॉस्फेयर है, लाइक मैंने अपनी लाइफ में कभी इतने साउथ इंडियन से मैंने कभी बात नहीं करी है जितने मैंने यहाँ पे पहले के 5-6 दिन में ही कर ली थी। So there is a like diverse culture, and you can learn a lot from different people. Everyone is doing something different. Everyone has their own visions. So you can just learn from them and create your own vision here. So it's a really nice experience here. ओके, ध्वनि और अवनी, एज अ मैथमेटिक्स टीचर, दार्शा की जर्नी में क्लास 9 से देखता आ रहा हूँ। 9th में एक अच्छा स्कोर था, क्लास 10th में भी मैथमेटिक्स में 100 on 100, 11th में भी नियरेस्ट 100, एंड क्लास 12th में भी मैथमेटिक्स में 100 on 100। जनरली मैथमेटिकल माइंड्स बहुत कम मिलते हैं हमें जब हम पढ़ा रहे होते हैं विद कंसिस्टेंसी। तो एज एन स्टूडेंट, एक बच्ची जो कंसिस्टेंटली 9th में, 10th में, 11th में, 12th में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली एक ऐसा स्कोर अटेन करती आ रही है जो बाकी लोगों के लिए शायद अचीवेबल ना हो। एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन ये लगातार 4 साल, वो भी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में। दार्शक, आपको देख के तो लग रहा है पॉसिबल है, लेकिन कैसे? Sir, I think what is more important is your love for that subject. You should actually be interested into it. Because जब तक हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट दैट। अगर मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं रोज़ रोज़ अपनी मैथ्स की बुक लेकर नहीं बैठती पढ़ने। So even at they were like it's times in 9th and 10th standard, my parents used to say, "Why are you only studying mathematics? There are other subjects also." But it was just into my mind that I just want to do mathematics and mathematics and mathematics, and that was the first like sole reason that I took PCM in 11th. And it was after that that I gradually developed this understanding of whatever the future aspects of this are. But it's not that hard actually. I always feel that if you practice daily, if you understand the concept, then you can score 100 in any subject. But you must have interest in that too. अच्छा, अगर एक बार हमने क्लास 10th में 100 लेकर के आ गए, तो नेक्स्ट टाइम किसी ने साथ में ये बोला था कि एक बार तो आ गए, दूसरी बार में शायद नहीं है? Yes sir, exactly. Like I still remember कि जब मैं 10th में थी तो मेरे 100 आए थे, तो उस टाइम ठीक है, अच्छा था। बट फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि तुम्हारे साल का पेपर इजी आया है, कि आ जाते हैं 10th में, तो 10th में कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आई वाज लाइक उस टाइम आंसर नहीं करना होता है, आप जो काम करते हो आपके एक्शंस ही सबसे अच्छा आंसर होते हैं उस टाइम। फिर बाद में 11th में भी आए तो शायद हो सकता है 11th में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने अंडर एस्टिमेट किया होगा कि कोई बात नहीं, 11th में तो स्कूल की चेकिंग है, आ सकते हैं। बट फिर 12th में वापस आए, अब वो फिर से अगर यही बात कर रहे हैं तो फिर मैं उसे एक पर्सनल हेटरेट कंसिडर करूँगी। बट आई थिंक उसके बाद काफ़ी लोगों को आंसर मिल गया होगा जो ऐसा सोचते थे कि लक काम करता है शायद मेरा, अब वो शायद ऐसा नहीं कह सकते। और हुआ इसका उल्टा। जो स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 9th and 11th, वहाँ पे 99 पे हम रुके और बोर्ड्स में हम लोग 100 पे पहुँचे। तो जो लोगों ने बोला, परस्यू करा, उसका हुआ उलट। बोर्ड में हमने परफेक्ट स्कोर अटेन किया, इन स्कूल एग्जामिनेशन हम लोग 99 पे रुके। दार्शा, जर्नी जब मैं देखता हूँ बेटा तुम्हारी, तो मैं देखता हूँ काफ़ी सारे जो चैलेंजेस है उन सबको ब्रेक करना, या फिर एक जो परसेप्शन है उनको ब्रेक करने की एक आदत सी बन गई। क्लास 10th में किसी ने बोला था कि दार्शा स्कूल टॉप करेगी? टू बी ऑनेस्ट नहीं सर, ऐसा मतलब
आपने बोला था, मुझे याद है, आपने मेरे से कहा था कि 100 लाने हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हाँ सर आएँगे। एंड फिर उसके बाद भी जो बाकी टीचर्स थे या इवन स्टूडेंट्स थे, सबको किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और शायद जब मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील भी हुआ था, जब रिज़ल्ट आया भी था, उसके बाद भी बहुत कम लोग थे जो एक्चुअल में खुश थे। बहुत ही कम सेगमेंट था उस टाइम पर भी। बट कोई बात नहीं, उन लोगों को जब आंसर मिलता है तो आई एम सैटिस्फाइड विद दैट ऑल्सो। और जो मुझ पे ट्रस्ट करते थे, उनका ट्रस्ट बना रहा। उनको अगर मेरे ऊपर प्राउड फील हो, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कुड हैव डन इन दिस 4 ईयर जर्नी एट स्कूल, लाइक 9 टू 12। हाँ, हाँ, इतने सारे रिमार्क्स होने के बावजूद कि नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। बहुत लोग होते हैं जो उस चीज़ से डीमोटिवेट होके पीछे रह जाते हैं, उसी थॉट में रह जाते हैं कि अब बोल दिया, एक बार शायद मैंने खुद भी मान लेते हैं कि अच्छा एक बार तो लक चल गया होगा। बट इट्स गुड कि आपने उस चीज़ को ब्रेक करा कि नहीं, ये लक नहीं था, ये मेरी ही अपनी मेहनत थी और आपने वो चीज़ बार-बार प्रूव करी। सो दैट्स गुड दैट यू accepted the hate comments or the comments that tried to take you down as a motivation, not as a thing to believe. अवनी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। दर्शा, ये तो पहला हर्डल था जहाँ पे पहली बार अंडर एस्टिमेट आप हुए थे और उसके बाद में आपने प्रूव करा स्कूल टॉप करके। अगेन यू गॉट द स्कॉलरशिप इन क्लास 11th। और स्कॉलरशिप जब मिलती है तो एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उसको जंप करना पड़ता है। एंड दैट क्राइटेरिया ओनली ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स। वो क्रॉस करा 11th में। क्लास 12th में अगेन परफेक्ट 100 इन मैथमेटिक्स। उसके बाद में जेई मेंस निकालना। मेंस में मुझे जहाँ तक याद है 70K+ की रैंक, जहाँ पे सब लोग ये मान करके चल रहे थे कि शायद ही कोई एनआईटी ट्रिपल आईटी भी शायद मिल पाए, तो वहाँ पे। और उसके बाद में एडवांस में एक ऐसा फिगर लेकर के आना जिसमें मुझे जहाँ तक पता है जोसा के फर्स्ट राउंड में ही आईआईटी मंडी अलॉट हो गया, फर्स्ट राउंड में। तो मेंस में इस रैंक के साथ में 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में इतना मतलब मैं कह सकता हूँ एक इमेजिनेशन से बियॉन्ड वाला जो परफॉर्मेंस आपने करा, उसके लिए कैसे मोटिवेट हो कोई बच्चा। क्योंकि मेरे सामने तो ये पहला एग्जाम्पल था कि जिस बच्चे ने मेंस में 75 और 70K+ की रैंक के साथ में, जहाँ पे एनआईटी और ट्रिपल आईटी भी हमारे रेंज में नहीं था, ऐसा काफ़ी लोगों को लग रहा था, लेकिन एडवांस में आपने इतना अच्छा स्कोर करा। ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस यू गॉट द अपॉर्चुनिटी इन आईआईटी मंडी इन द फर्स्ट राउंड। तो वो जो मोटिवेशन है, जो 1 महीने का जो कठिन मेहनत है, उसमें तो मैं ये भी मानता हूँ कि शायद कोचिंग का रोल भी नहीं होता, क्योंकि उस समय तो आपने खुद ही हार्ड वर्क करा है। तो उसके लिए बाकी बच्चों को कैसे अपनी जर्नी के साथ में इंस्पायर करोगे? कैसे आप बता सकते हो कि वो जो 1 महीना है, डिमोटिवेट नहीं होना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ओवरकम करते हैं तो डेफिनेटली हम एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। Yes, sir. So whatever you said, all of that is actually true. So हुआ था लाइक जब पहला एक्चुअली फर्स्ट मीन्स मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ था कि मेरा इतना ख़राब गया है कि मेरी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरी 90 या 91 परसेंटाइल आएगी, तो मेरी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाई। सो जब मेरा फर्स्ट मेंस का रिजल्ट आया था, 95 परसेंट आई। I don't know why, but I was happy. I don't know why, but I was actually happy. But soon I realized that it's obviously not enough, like not that enough to get into a government college. So इतना तो मुझे क्लियर हो गया था कि हाँ एनआईटी नहीं मिलेगा, आईआईटी आईआईटी तो बाकी बात है, एनआईटी ट्रिपल आईटी इवन जीएफटीआईज का भी आई वाज थिंकिंग कि जो थोड़े लाइक टॉप सीयर में है वो भी बहुत ही डिफिकल्ट रहते हैं। एंड फिर उसके बाद काफ़ी लोग ऐसे मिले थे, दे स्टार्टेड सेइंग कि थोड़े प्राइवेट कॉलेजेस पे ध्यान दो, कहाँ एडमिशन लेना है उसके बारे में ध्यान दो। बट उस टाइम आई जस्ट फेल्ट कि देयर इज एन इनर फीलिंग, वी ऑल हैव दैट सिक्स्थ सेंस और दैट इंट्यूशन व्हिच सेज कि no, that is not where I want to go. So when somebody said private college, I was always like, there was pin like that was pointed a pinch into my heart. I was always like कि no, I don't wish to be in a private college. And उसके बाद फिर बहुत इंसिडेंट्स ऐसे ही होते थे जब बार बार आई फेल्ट कि मुझे शायद अंडर एस्टिमेट ही किया जा रहा है। बट
the main thing that you need to do at such point of time is you gotta believe in yourself. And ये नहीं भूलना है कि जो आपके वो 1 महीने का भी टाइम है, काफ़ी लोगों को लगता है कि बस 1 महीना बचा है। तो अच्छी बात है, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है तो उसमें हमें ये सोचना चाहिए ना कि बस 1 महीना ही तो और पढ़ना है। अगर 1 महीना और पढ़ लेंगे, तो कुछ कम तो नहीं हो जाएगा? उसके बाद यही बस मैंने सोचा था कि बस ये 1 महीना ही और है, इसमें भी मुझे पढ़ना है सो दैट मुझे पर्सनली कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आईआईटी ना मिलना कोई ऐसा नहीं होता कि कुछ बहुत बुरा हो जाए। प्राइवेट कॉलेज में भी जाके बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट आपको कभी ट्राई करना नहीं छोड़ना होता है, बिकॉज जब आपने इट्स ऑलवेज सेड कि जैसे आप ट्राई करना छोड़ देते हो, दैट इज द पॉइंट वेयर यू एक्चुअली लूज। सो अगर अगर आप अपनी इस जर्नी में कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डालते रहोगे तो आपके साथ कभी इतनी यूनिवर्स इनजस्टिस नहीं कर सकता कि आप जो चाहते हो आपको वो ना मिले। सो बस आपको पीछे नहीं हटना है। और जो चीज़ जब मैंने अपनी 1 मंथ में वो जो प्रिपरेशन करी थी, मैंने एडवांस का एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। ऑल आई डिड वाज़ जितना मुझे आता है बस उसे कंटिन्यूअसली रिवाइज़ करना है, क्वेश्चंस को बस देखना है कि पीवाईक्यूज़ कैसे हैं, उन्हें सॉल्व करना है। एग्ज़ैक्टली मैं ऐसे कभी भी नहीं बैठी कि मैं मॉक टेस्ट देने जा रही हूँ। एंड इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी यही था कि वहाँ पर जो 99 प्लस परसेंटाइल वाले बच्चे थे, उनके लिए स्पेशल एडवांस क्लासेस चल रही थी। तो वो भी आपको एक डिमोटिवेशन दे देते हैं कि ठीक है, यू आर नॉट डिजर्विंग, आपको ये क्लास नहीं मिल सकती है। बट उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं होता है। और कभी इस एक प्रेशर लेकर नहीं चलना होता है कि अगर एडवांस नहीं निकला या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकला तो लाइफ ख़त्म हो जाती है। लाइफ बहुत, इसके आगे बहुत लाइफ है। और बस एक फ्री माइंड से पढ़ना होता है और इतना होना चाहिए कि मुझे रेगुलरली, मेरा अगर ये डेली टारगेट है, सो आई हैव टू कंप्लीट दैट। एंड बस आपको आराम से लाइक पेपर दे के आना है। मैं तो पेपर के टाइम पर भी कुछ नहीं सोच रही थी, लाइक मैं पेपर दिया था बस, मैं बैठी रही थी। मैं बहुत चिल थी, मैं कभी किसी पेपर में इतना चिल नहीं रही हूँ जितना मैं एडवांस के पेपर में थी। तो बस उस टाइम पे वो एक अच्छे माइंडसेट से जाना है, पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है एंड मैनिफेस्ट करना है कि अच्छा ही होगा जो होगा। मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इतना करना होता है एंड आई थिंक रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। उसके बाद जो भी होगा आपके लिए हमेशा बेस्ट ही होगा। ध्वनि, इससे पहले आप वाइंड अप करो, मैं एक बार एक लाइन में दारशा की जो जर्नी है वो बता देता हूँ। 9th में, क्योंकि मैथमेटिकल माइंड तो शुरू से ही रहा है, 9th में भी आई थिंक सी इज अ रैंक होल्डर, क्लास 10th में स्कूल टॉपर, 11th में रैंक होल्डर, क्लास 12th में भी एक अच्छा फिगर था 95 प्लस परसेंटेज के साथ में। उसके बाद में मेंस में एक ऐसा फिगर लेकर के आना, उसके बाद में एडवांस की सीट निकालना, वो सीट निकाली। बिट्स पिलानी में एक ऐसा अच्छा स्कोर आया बिट्स के एग्ज़ाम में। और इसने पैरेलल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम देने भी नहीं छोड़े, जो जो सजेस्ट किया गया। आईपी यूनिवर्सिटी में भी इसने एक गवर्नमेंट कॉलेज निकाला। और इसके अलावा अभी तक का सिल्वर लाइन में इस साल का CUET जो इस हमारा एग्ज़ाम होता है, जिसको जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि साइंस वाले थोड़ा बच्चे अवॉइड करते हैं, लेकिन सी इज़ द वन हु गॉट 900 प्लस स्कोर इन CUET। और ये अभी तक के CUET एस्पिरेंट्स जितने भी हमारे स्कूल में जिन्होंने भी एनरोल किया, इट्स अराउंड 221 रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुए थे, उसमें हाईएस्ट स्कोरर दार्शिया शर्मा थी CUET के स्कोर में भी। और ये CUET के एग्ज़ाम उस फेज़ में हुए थे जब सी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, और प्रिपेयरिंग किस कंडीशन में प्रिपेयर कर रही थी कि मेंस में इसका अच्छा नहीं हुआ, उस फेज़ में भी इसने एग्ज़ाम देने नहीं छोड़े। और ऑल्दो शी नोज कि मुझे BSc नहीं करना, इसका ये पर्सनल परसेप्शन था, और इसको पता था कि CUET से कोई मुझे BSc के लिए नहीं जाना, बट शी गेव द एग्ज़ाम। और इसको ट्रस्ट था कि अगर स्कूल ने बोला है तो इसने फिल करा उस एग्ज़ाम को, रजिस्ट्रेशन करा, उस एग्ज़ाम को दे करके भी आई। और लगातार मैं तो बता ही रहा हूँ कि 10th में स्कॉलरशिप, 11th में स्कॉलरशिप, 12th में स्कॉलरशिप, तो एक जर्नी रही है विद सक्सेस स्टोरीज। और ऑल्दो कभी कभी ओवर एस्टिमेशन अपने आप को तो नहीं कहा, हालांकि अंडर एस्टिमेट काफ़ी बार हुई है, लेकिन हमेशा हम देखते हैं तो प्रोग्रेस ही मिली है। इसने जो भी चैलेंजेस इसको मिले हैं सबको क्रॉस करा है और अचीवमेंट्स की लाइन लगी हुई है।
तो सी इज द ओनली वन इन आवर स्कूल जो आईआईटी में है गर्ल चाइल्ड। अभी तक हमारे स्कूल की हिस्ट्री में पहली बच्ची है जो आईआईटी में है गर्ल, एक लड़की, बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी और हमारे जो स्कूल के एग्जाम्स में भी। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है और ये पॉडकास्ट जो बाकी बच्चे भी देखेंगे ऑल्दो दे ऑल्सो इंस्पायर, और काफ़ी अच्छा लगा। अभी चेहरे पे खुशी भी लग रही है इसके कि ये सही जगह पे गई है। I think दार्शा की जर्नी एक प्रूविंग पॉइंट है दैट हार्ड वर्क डेफिनेटली पेज ऑफ, एंड मैं उसे पर्सनली जानती हूँ एंड Yes. आई नो उसने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की, उसने कभी गिव अप नहीं किया। आई हैव सीन हर क्राइंग इन द Yes. क्लास। पूछा भी है कि क्यों रो रही है, तो इट्स क्योंकि बहुत एंग्जाइटी हो रही है, इट्स कि कुछ छूट रहा है एंड कुछ नहीं हो पा रहा। सो आई थिंक उसने कभी गिव अप नहीं किया, एंड एज यू सेड उसने सीयूटी भी दिया, उसकी बैक टू बैक एग्जाम्स थी, जैसे उसका एडवांस था एंड नेक्स्ट ईयर उसका सीयूटी था। आई थिंक दैट्स रियली इंस्पायरिंग कि आप अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको एक कोर्स करना है, आपको वो कोर्स दूसरा कोर्स नहीं करना, बट स्टिल यू आर गिविंग दैट एग्जाम सो दैट यू हैव एन ऑप्शन, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। अगर एक में नहीं हुआ आपको दूसरे में मिल रहा है। आई थिंक दैट्स रियली इंस्पायरिंग एंड एनकरेजिंग आपके जूनियर्स के लिए, आपके बैचमेट्स के लिए। वो बहुत ही एक मोटिवेशन है कि आप इतना कुछ अचीव कर रहे हो एंड आपने कभी ऐसे गिव अप नहीं किया। ध्वनि एक लाइन और बोलूंगा, दार्शा एज अ टीचर मैं बता रहा हूँ उसका, इसके साथ एक स्पेशलिटी ये थी, जनरली मैं बच्चे को कोई कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, क्लास 10th का भी बता रहा हूँ, 11th का 12th का भी, मैंने जो भी क्वेश्चंस अगर इसको भेजे वो क्वेश्चंस होकर के मेरे पास में आते थे और उसमें से जो डाउट्स होते थे वो भी आते थे। तो अगर मैंने दिन के 50 क्वेश्चन भी भेजे तो 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, वो मेरे को ध्यान में नहीं है कि मैंने कितने क्वेश्चन भेजे थे, बट ये बच्चा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था, अपने नोटबुक में करता था और वो शेयर करता था। मतलब अगर मैंने इन जनरल उसको कुछ भी शेयर किया है कि ये क्वेश्चंस जरा देख लेना विदाउट कोई एनी टेक्स्ट मैसेज, मैंने इमेज भेज दी, कुछ मैसेज नहीं लिखा, उसने बच्चे ने वो अटेम्प्ट करा, उसको सीरियसली लिया और उसी कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है कि कंटिन्यूसली इसने जो है अपने आप को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रूव करते चले गए। तो काफी अच्छा इसका अभी तक का जर्नी है। बाकी आप ध्वनि। यस सर, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, जैसे अभी हमने कहा था क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, उसने बहुत प्रैक्टिस किया एंड प्रैक्टिस आई थिंक मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। एंड उसने कभी अगर हमने किसने भी हेल्प मांगी है, अगर हमने कुछ भी क्वेश्चन पूछा है किसने भी, या मैंने हो या फिर anyone from the class or from other section, she has always helped that person. And even if the juniors, उसने जब 11th में 10th की टॉपर होने की स्पीच दी थी and the juniors were coming to her कि आपने कैसे किया which study, कौन सी बुक सीखी, from which material, even then also कि उसने कभी मना नहीं किया कि मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं आपको एक बार बोल चुकी हूँ, nothing like that. She has always helped people around. ओके दार्शा, हम इसके साथ एंड करेंगे। एक लाइन में अपनी जर्नी खुद बताओ और फिर हम इसके साथ में इसको एंड करते हैं। सर इफ एक लाइन में मैं बोलूँ सो इट्स आई वुड ओनली से कि जर्नी कोई सी भी हो, अंडर एस्टिमेट बहुत हो गए, होप भी बहुत बार टूटेगा, बहुत पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे आएंगे जब यू विल फील कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। डजेंट मैटर आप में कितना पोटेंशियल, आप उसको कभी भी नहीं देख पाओगे। बट द ओनली थिंग दैट यू गॉट टू डू इज वर्किंग ईच एंड एवरी डे, बिकॉज आई थिंक एज अ स्टूडेंट इट्स आवर जॉब टू स्टडी। सो बस रोज़ वही करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है अपना, चाहे आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कितना भी नेगेटिव हो जाए, बस उस आउटलुक से चलना है एंड रिजल्ट का नहीं सोचना है, रिजल्ट के बारे में बिना सोचे बस वर्क करते जाना है और उसके बाद आपको जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो आपके लिए बेस्ट ही होगा। It's been lovely talking to you, Dasha. Your journey has been very inspiring. So, in that, we would like to end the podcast here. So, thank you so much, Rashia, for sharing such a great, inspiring journey of yours with us. So, we are so proud of you. And we just wish you all the best for your future. थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू दार्शा। Bye bye. बाय बाय।